Good morning, everyone. Very Good good morning, morning, sir. sir. Sir, Yeah, how are Sir, you? I'm fine. How are you? I'm also fine. sir, once again we are meeting. Yes, once again we are meeting. Sir, I think when you have the periods in 7th day, we meet in the day 2 times. Yes. Sir, yesterday you are gone to school, so that's why you are not. Yeah, yesterday I had gone to the school. Yes, sir. And the day before yesterday also, sir, because in fifth period you are not. I was just there. Day before yesterday? Sir, in yesterday also, Yes, sir, day sir. period in 7th day. The day before yesterday, Sir, so I was there. no, sir, you were On there, but sir, when after math period and reasoning period you are not. the reasoning period is on Tuesday, not on Monday. Not So, sir, I was day, just day before yesterday was Thursday. We have our reasoning why? period on Tuesday. Ahuja sir must have taken arrangement of some other period, some other teacher. किसी और Okay. टीचर का अरेंजमेंट लिया हुआ. And sir, yesterday Maria ma'am took our reasoning period. Okay, so what did she teach you in reasoning? Sir, she is teaching from book, and I don't know where is my reasoning book because you are teaching from your side. So she was Sir, she had She had The sir alphanumeric yes series. shared yes sir alphanumeric series. आ गई आप लोगों को समझ में alphanumeric series? sir, yes some questions are left. Sir, There are 54 somewhat, questions. sir, because we haven't started that. Okay. So we will do Sir, some in 7th, questions of alphanumeric series जो मैम ने नहीं करे हैं वो हम कर लेंगे यहाँ पर. एंड आपको उसका बेसिक्स और ये सब मैं बता दूंगा. Whenever we have our reasoning class, जब भी sir, होगी तब. Yes. in 7th day there is one chapter left only. Okay. Sir, today we'll start with a new chapter. New chapter. Directions and stress. We will do revision of probability. So I gave a worksheet to class 7th A in the first period. Sir, today is Saturday. Okay, sir. So, sir, from Monday we have to study. Okay, sir. So, sir, today cannot be. Sir, please, हमें reasoning मतलब worksheet नहीं करवाइए. Sir, because today is Saturday वाले दिन थोड़ा सा okay होता है. Sir, you get worksheet of reasoning also to 7th B. No. मैं वर्कशीट करने को नहीं दूंगा आप लोगों को. मैं डिस्कस करूंगा वर्कशीट प्रोबेबिलिटी की. ओके, हियर ओनली. तो मतलब आई विल नॉट गिव यू टाइम टू डू द वर्कशीट. ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Sir, we will do worksheet of bar graph also. जस्ट वेट. दक्ष सर बारग्राफ की वर्कशीट कहाँ से आ गई? बारग्राफ के एक दो क्वेश्चन तो सर दे सकते हैं, वर्कशीट कैसे दें? नहीं, बारग्राफ वर्कशीट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. Okay, sir. करेंगे क्या बारग्राफ? Sir, sir means like so small chapters like symmetry, 3D dimension shapes, bar graph. These worksheet are not required. It These is chapter not worksheet. required. I hope you all will study these chapters from the book and you will get a good practice. Okay, Yes, sir. so it is not required. If you have any doubts, you can ask always. Okay, from these chapters also. If you have any doubts, you can ask.
So let us discuss this worksheet. This is a worksheet of the chapter probability. ठीक है बेटा, आइए डिस्कस करते हैं. Let's do. So first question is, list the outcomes you can see. Chat box. Sir, can I ask my doubt? Yes, Daksh Gangwar, what doubt do you have? Sir, I have a doubt from exponents. थोड़ी देर रुको, ये कर लें, उसके बाद पूछ लेना. Okay, sir. Okay, sir. So list the outcomes you can see in these experiments. ये दो experiments के नाम लिखे हैं. First experiment is spinning a wheel. ये first part का है, spinning a wheel. ये wheel बना के दिया है आपको, देख रहे हैं आप लोग? Wheel is there. Please everyone start your videos. Okay, sir, just open. So you have to list the outcomes. कौन कौन से, अगर आप wheel को rotate करेंगे, ये जो arrow है इसको rotate करेंगे, arrow दिख रहा है आपको? तो जब आप एरो को रोटेट करेंगे तो रैंडमली किसी भी सेक्टर में आ सकता है एरो. तो कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं? ए, बी, सी एंड डी. यही 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं. इज देयर एनी अदर आउटकम व्हिच इज पॉसिबल? नो. ओके, तो ये हो गया आंसर. यही पूछ रहे हैं आपसे, प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं पूछी है, सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से आउटकम्स हैं वो बताइए. ओके, the next one is tossing two coins together. जब दो coins हम toss करते हैं एक साथ, this is the first coin, this is the second coin. तो कौन कौन से outcomes हो सकते हैं? First outcome क्या हो सकता है? दोनों पे head आ जाए. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि दोनों coins पे head आ जाए. सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आए, सेकेंड पे टेल आए. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए, सेकेंड पे हेड आ जाए. एंड फाइनली द फोर्थ वन, दोनों टेल आ जाए. हाँ, फोर्थ वन इज दोनों पे टेल आ जाए. सो दीज आर द 4 आउटकम्स पॉसिबल. ये आपका आंसर हो गया. दिस इज द आंसर. ओके, ये कॉइन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाए थे, ये मत बना देना. ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट द आउटकम्स, 4 आउटकम्स व्हिच आर पॉसिबल. ओके, clear? First question is clear, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Question number 2. So we'll just list those outcomes that will come. Yes. Just list the outcomes. That means just give the outcomes which are possible in the following experiments. Question 2. Second question. When a dice is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number. एक डाई को, जब आप डाई मतलब वही लूडो वाला जो होता है डाइस, उसको सिंगुलर फॉर्म में डाई बोलते हैं. ठीक है, तो जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वी हैव ऑलरेडी डन दिस सो मेनी टाइम्स. प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं डाई पर? बताओ. सर 2, 3 and 5. 2, 3 and 5. वेरी गुड. ये होते हैं प्राइम नंबर्स. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, देखो 3 आउटकम्स फेवरेबल हो गए और डाइस पर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6. टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6. So the probability of getting a prime number is 3/6. 3 क्यों लिखा है न्यूमरेटर में? Because favorable outcomes 3 होंगे. Okay. So 3/6 आंसर. फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 3/6. I hope you all will write the formula and everything. Yes. Okay. Second part. Second part of the question. Not a prime number. A number which is not a prime number. What is the probability of getting a number which is not a prime number? तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं डाइस पर?
1 Sir, 1, 4 and 6. 1 4 एंड 6 जब 3 2 3 2 3 और 5 जब आपके प्राइम नंबर होते हैं इसका 1 4 इसका मतलब 1 4 and 6 are not prime numbers, so that means the answer is again 3/6. आंसर कितना हो जाएगा 3/6. Why 3/6? Because total outcome 6 and favorable outcomes again 3. Answer 3/6. Let's do the third part of the question. Third part, a number greater than 5. 5 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. हाँ जी, 1/6. प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी. प्रोबेबिलिटी 6. प्रोबेबिलिटी 6 6. प्रोबेबिलिटी इज 1/6. 5 से बड़े कितने नंबर होते हैं मैंने भी तो बेटा? पहले ही बोला था. हाँ 1/6 राइट आंसर. स्काई शर्मा पहले 1/6 बोला था, बाद में 6 बोल दिया. पहले सही आंसर दिया था. पर आपने कहा ना सर प्रोबेबिलिटी बेटा, मैं बताइए बाकी सर, तो बच्चों मैं से कंफ्यूज पूछ हो रहा गया. था. आपका आंसर तो सही था, बाकी बच्चों से पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी क्या है. बाकी बच्चों ने किसी ने भी प्रोबेबिलिटी नहीं बताई थी, सिर्फ 5 से बड़ा नंबर बता Sir, I रहे थे. haven't done. So 7. आंसर इज 1/6. 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर होता है डाइस पर, विच इज 6. एक ही नंबर होता है. तो फेवरेबल आउटकम तो सिर्फ एक ही हुआ ना. 6 थोड़ी लिखेंगे न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे बिकॉज देयर इज ओनली 1 फेवरेबल आउटकम. एंड टोटल आउटकम्स अगेन 6. हमेशा 6 ही होते हैं जब भी आप डाइस थ्रो करेंगे. तो आंसर हो गया 1/6. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट. A number not greater than 5. एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है. 4/6. 4/6. एक आंसर बच्चों का आ गया 4/6. So let us discuss whether this is right or not. Are you all sure that 4/6 is the answer? Sir, 5/6. Sir, 4/6. Sir, 4/6. Sir, 5/6. Sir, 4/5. 6 से आ गया, 5 से छोटा मांगा है. Sir, maybe 4/5. Just wait a minute. Just wait for a minute. Okay, sure. Okay, the answer is 4/6 is not correct. The answer is 5/6. अभी लक्ष्मीवीर ने शायद बताया था 5/6. Who gave the answer? Yes, sir. 5/6. This is correct. 5/6. Sir, why? एक ऐसा नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 5. तो आइए देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स में. टोटल आउटकम तो बेटा 6 ही होते हैं, तो डिनोमिनेटर में तो 6 ही आएगा. तो न्यूमरेटर की बात करते हैं. फेवरेबल आउटकम्स, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. क्या 1 5 से बड़ा होता है? नहीं होता है, तो ये फेवरेबल हो गया. 2 5 से बड़ा होता है, वो भी नहीं होता, ये भी फेवरेबल हो गया. 3 भी फेवरेबल हो गया. 4 भी फेवरेबल हो गया. क्या 5 5 से बड़ा होता है? ये कह रहे हैं 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए. तो क्या 5 5 से बड़ा होता है? नहीं होता है. तो ये फेवरेबल हुआ या नहीं हुआ? इन्होंने बोला नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स 5 इज ऑल्सो फेवरेबल. टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5 हो गए. तो 5/6 इज द आंसर. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir, now clear. Yes, sir. Crystal. Okay. Question number 3. Probability of the pointer stopping on D. ये जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में दिया है, क्वेश्चन 1 में जो ये स्पिनिंग व्हील दिया है, इस व्हील को देख के आपको बताना है डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. टोटल सेक्टर्स कितने हैं? 5 हैं. तो डिनोमिनेटर में तो 5 है. 5/1. 5/1. 1/5. 1/5. 1/5. Sorry. 1/5.
टोटल sorry. आउटकम्स 5 हैं, वो डिनोमिनेटर में आएगा 5, और सिर्फ एक ही सेक्टर ऐसा है जिसमें डी लिखा है, ठीक है। तो फेवरेबल सिर्फ एक ही हुआ, 1/5 इज द आंसर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या आंसर होगा आपका? 2/5. 2/5, करेक्ट। 2/5 इसलिए होगा बिकॉज ए 2 सेक्टर में लिखा हुआ है, तो 2 सेक्टर फेवरेबल हो गए, टोटल 5 है, आंसर 2/5 हो जाएगा अगर ए की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन 3 बी पार्ट, प्लेइंग कार्ड्स का क्वेश्चन है। आप लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में अभी नहीं जानते हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। देखिए ये एप्पल्स की वो दे रखे हैं आपको, एक सेकेंड रुको। ये एप्पल्स कुछ यहाँ पर सर्कल के अंदर बनाए हैं इन्होंने, दिख रहे हैं अब अच्छे से? कुछ रेड कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, तो आपको बताना है रेड कलर के एप्पल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बहुत सिंपल है बताना, टोटल एप्पल 7 है और जिसमें से 4 रेड हैं, तो आंसर 4/7। आई थिंक मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन। 4/7 करेक्ट, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, तो थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, ऊपर के क्वेश्चन तो हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, numbers 1 to 10 are given on 10 separate slips। 10 slips हैं आपके पास, वो होते हैं ना, वो आप बनाते हैं वो गेम्स वगैरह में, वो छोटी छोटी स्लिप्स बनाते हैं कुछ। Yes, sir. In और cricket, हाँ, sir, we make slips. अरे Yes, wicketkeeper अरे left. मारे गए भैया, कौन सी स्लिप पे पहुंच गया ये लड़का? बेटा पेपर की स्लिप, हम लोग खेलते हैं वो वाली पर्ची। हाँ पेपर की स्लिप की बात कर रहे हैं। वो स्लिप वाले गेम्स नहीं खेले हैं आपने? पेपर पे स्लिप पे कुछ लिखते हैं, फिर वो एक्सचेंज करते हैं, ऐसे कुछ गेम्स वगैरह होते हैं ना, क्या कहते हैं वो? Yes, sir. खेले It हैं। also there is slip. TTP top. हाँ वही उसी टाइप के एक, हाँ एक होता है 16 पर्ची, एक Yes, होता sir, है 16 पर्ची। 12 पर्ची सर, 12 पर्ची भी होता है। हाँ हाँ हाँ, कितना मजा आया। हाँ तो वैसे ही स्लिप्स पर 10 नंबर्स लिख दिए यहाँ पर, 10 स्लिप्स निकाली पहले, उन पे नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। अब रेंडमली एक स्लिप को रेंडमली चूज किया, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, एक स्लिप को चूज कर लिया। What is the probability of getting a number 6? उस स्लिप पर जो आपने चूज करी है उस पे 6 नंबर लिखा होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज 1/10. नॉट 6/10, इट इज 1/10, क्योंकि 10 में से सिर्फ एक ही स्लिप तो ऐसी है जिसपे 6 लिखा होगा, तो आंसर 1/10। फेवरेबल एक, टोटल 10, 1/10 आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, गेटिंग अ नंबर 10/5, कौन सी बातें कर रहा है लड़का? गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अरे बेटा 5/10, 10/5 उल्टा बोल दिया कैसी बेटा? अगर ऐसे एग्जाम में करके आओगे ना 10/5 सीधे 0 ही मिलेगा, सीधे 0 ही मिलेगा अगर एग्जाम में गलती से 10/5 लिख दिया। दिमाग पूरा चला लिया, पूरी मेहनत कर ली, आंसर भी निकाल लिया, लेकिन लिख दिया 10/5, पूरा 0 मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। 5/10 इज द आंसर। भाई 6 से छोटे 5 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 भी तो 6 से छोटा होता है, 6 से छोटा होता है बराबर होता बेटा? है, कौन किसने कहा है 6 बराबर से? होता है। हाँ तो यहाँ पे तो सर लेस देन, इक्वल होता है। हाँ यहाँ तो लेस देन पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। 5/10, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 4/10। आंसर इज 4/10। 6 से बड़े 4 नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 8 9 10, सॉरी 7 8 9 10, ठीक है। 7 8 9 10 आर स्मॉलर देन, सॉरी ग्रेटर देन 6, तो आंसर 4/10 हो गया, ठीक है। लास्ट, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर 9/10। 9/10। भाई 1 डिजिट नंबर 9 होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर 1 डिजिट नंबर है।
सिर्फ एक ही नंबर है जो पहले से 2 0 डिजिट कर नंबर। दिए सर, वो भी एक डिजिट है। वाह वाह, क्या बात कही है। Sir, but there is sleeping ticket also. अरे दक्ष गंगवार, ये जरा वीडियो ऑन करना जरा तुम अपना दक्ष। तुम्हें कॉमेडी कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेते हो। वीडियो तो ऑन करो। Sorry, sir. अरे अरे मजाक कर रहा हूँ मैं भी, तुम तो डर जाते हो यार। मैं कह रहा हूँ सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि दक्ष गंगवार तुम यार कॉमेडी बहुत अच्छी करते हो, सच में। सर कपिल शर्मा शो देखता होगा रोज। अरे शर्मा जाता है लड़का। बेटा वीडियो तो ऑन करो। हाँ हाँ, क्या बात है, लड़का बहुत अच्छी कॉमेडी करता है। चलिए, एक एक शो आएगा आगे जाके, द दक्ष गंगवार शो। सर एवरीवन विल वॉच अप फ्रॉम आवर स्कूल। चलिए, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। जैसे यही वाला था आपका स्पिनिंग व्हील, उसी टाइप का स्पिनिंग व्हील है, मैं बना देता हूँ, देखो बेटा। ये एक स्पिनिंग व्हील है, इसमें 5 सेक्टर हैं, मैं बना देता हूँ 5 सेक्टर। देख, हो सकता है छोटे बड़े साइज के बन जाए, बट भावनाओं पे जाओ। चलिए, फिर भी काफी सही बना। तो दिस स्पिनिंग व्हील, इसके 3 सेक्टर ग्रीन कलर के हैं, दिख रहा है बेटा ग्रीन कलर। तो 3 सेक्टर में ग्रीन कलर भरा हुआ है, एंड एक सेक्टर में ब्लू है, एक में रेड है, एक में ब्लू है, ठीक है, और एक सेक्टर में आपका हो गया रेड है। बहुत अच्छा। अब आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। बेटा क्लियर हो गया भाई, फिगर से क्लियर है। स्पिनिंग व्हील, इस पे भी एक एरो बना हुआ होगा, एरो Yes, बना sir. देता हूँ, ब्लैक कलर से एरो बना देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये है एरो, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये स्पिनिंग व्हील आपने घुमाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 4/5। नॉन ब्लू यहाँ पर कितने हैं जरा 4/5. बताना है। ऐसे कौन से कितने सेक्टर हैं जो नॉन ब्लू हैं। 4। 4. 4. 4. सेक्टर्स आर नॉन ब्लू। 4 टोटल sectors. हाँ, टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 5 हैं, तो आंसर हो गया 4/5। ठीक है, कितना आसान चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। So there is फाइंड one द question also. वन So क्वेश्चन what is the ऑल्सो। probability of getting green sector? ओके सॉरी, वो मिस हो गया। ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3/5। 3/5, ठीक है। 3/5. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ये हटा दें बेटा स्पिनिंग व्हील। सर यस सर। सर आपके पीछे आपके दीदी के साथ में खेल रहा है, इस वजह से मेरे बच्चा की आवाज आ रही है, आप घूम पे हैं। आवाज आ रही सर है आवाज सच आ में? रही, राधे राधे। यस सर, अच्छा, अभी भी आ रही है? खेल रहा है। सर अभी नहीं आ रही। अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी। अच्छा, यस सर। हो सकता है, मैंने सुना, मैं ध्यान नहीं दिया। मतलब हो सकता है खेलते ही रहते हैं सब सारा दिन उसके साथ। Sir, which? Sir, now we have to come on question number. Number 6. Question 6. Find the probabilities of events given in question 2. क्वेश्चन 2 में जो इवेंट्स दिए हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। क्वेश्चन 2 में इवेंट्स कौन कौन से हैं भाई, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Sir, अरे ये one तो हम पहले question and निकाल चुके हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2। अरे ये तो प्रोबेबिलिटी तो हम पहले निकाल चुके हैं, हमें आउटकम्स लिखने देखो। चलो ठीक है, हटाओ, क्वेश्चन 6 हो गया, पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग प्रोबेबिलिटीज, सॉरी। sir, the 7th question you've explained in 7th day. और भी हैं क्वेश्चंस?
अभी मैंने सिर्फ 9 करवाए हैं आप लोगों से। क्वेश्चन 7, प्लीज स्टार्ट योर सर अब वीडियोस। यहाँ पे है। अब ओके नहीं करें? सर। ये सर अब नहीं सर करते हैं। ऐसा क्यों बेटा, ओवर। ये तो कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी तो याद नहीं, हिंदी में कर लेंगे। नहीं नहीं बेटा। सर Question 7. A bag has 4 red balls and 2 yellow balls. सर ऐसा क्वेश्चन तो सर आपने भी दिया था। यस सर, आई नो। The bag has 4 red balls, 2 yellow balls. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. What is the probability of getting a red ball? रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बताइए भाई। 4 रेड, 4/6। 2/3 is the answer. और येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6, 1/3 is the तो answer. किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ज्यादा इज हायर? रेड बॉल में। रेड बॉल की ऑब्वियसली ball. ज्यादा होगी, बिकॉज रेड बॉल The ज्यादा है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, ninth है ना ball. भाई? और बाकी हम लोग एक और तरीका है कंपेयर करने का, फ्रैक्शंस में आ जाएगा आंसर। आप फ्रैक्शन को कंपेयर करना जानते हैं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है उसको देख करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज कॉमन सेंस वाली बात है, जब रेड बॉल ज्यादा है तो रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज्यादा होंगे नहीं होंगे? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांसेस तो होते हैं। तो रेड बॉल निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसमें क्योंकि ज्यादा है ना सर। और हाँ हाँ सर अगर येलो बॉल होती ज्यादा तो येलो बॉल पे होती। यस। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके यहाँ पर वो है प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो ये हम बाद में करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, इसलिए मैंने अभी नहीं कराया है। What is the maximum value of the probability for an event? एक इवेंट की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, बताइए। बता चुका हूँ मैं आपको। 1/1. आंसर इज 1/1. आंसर इज 1। 1/1 का मतलब एक्चुअली 1 ही होता है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की 1 हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, आपने एक डाइस थ्रो करा, मान लीजिए डाइस पे कौन कौन से नंबर्स लिखे होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 1 2 6। 3 4 5 6. 1 2 6। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अरे मर गया बेटा, माइक्स ऑफ कर लो प्लीज आप लोग अपने, सर अभी ना माइक इज ओपन. माइक्स ऑफ कर लो, ठीक है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो मान लीजिए एक डाइस थ्रो करा हमने, डाइस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज लेस देन 10। 10 से छोटा नंबर होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो 10 से छोटा नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 में से जितने भी नंबर 9/10. 9/10 सभी होते हैं बेटा, जो आउटकम्स पॉसिबल हैं उन्हीं में से ही तो आंसर होगा। 9/10 कैसे हो जाएगा? और सभी होते हैं। 1/10 is the answer. And I'm देखो देखो मेरी बात सुनो, 6 नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 डाइस पर। मैंने आपसे पूछा 10 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 10 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे नंबर 10 से छोटे ही हैं, सारे 10 से छोटे ही हैं, यानी कि सारे 5/6. ऑल द, अरे बेटा 5/6 कैसे आ गया? ऑल द 6 नंबर्स आर फेवरेबल आउटकम, सारे के सारे 6 फेवरेबल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये सारे नंबर 10 से छोटे हैं, तो टोटल आउटकम्स भी यहाँ पर 6 हैं और फेवरेबल भी 6 हो गए। हो गए नहीं हो गए? फेवरेबल आउटकम्स भी 6 हैं, टोटल भी 6 हैं, फेवरेबल भी 6 हैं। तो 6/6 का मतलब क्या होता है? 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। 1/1. 1/1 या 1 एक ही बात होती है। तो 1 हो सकती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। कैन यू टेल मी मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 0. कैन यू गिव द एग्जांपल? 0.5। Sir, if maximum will be 1, then some minimum will be 0. Yes, 0. ऐसे थोड़ी आंसर देना है। चलिए मैं बताता हूँ।
जीरो इज द करेक्ट आंसर, 0.5। बट इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, आइए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अगर मैं आपसे कह देता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन कुछ भी, मोर देन 8 मान लीजिए, बोल देते हैं मोर देन 8। डाइस थ्रो वन करा अपॉन हमने, 8। डाइस थ्रो करा हमने, अरे लड़के, डाइस को थ्रो करा, डाइस थ्रो करने पर 6 आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब डाइस थ्रो करने पर 8 से बड़ा नंबर आ सकता है, बताओ 8 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है? पहली बात तो 6 से, सर पहली बात तो 6 से सर बड़ा 8 नंबर ही ही नहीं नहीं है। आएगा सर। हाँ 8 ही नहीं आएगा, सर 6 से 8 ही बड़ा नहीं नंबर आएगा। आ ही नहीं सकता। तो ये जो मैंने बोला इवेंट अभी अभी बोला, इसमें तो कोई भी फेवरेबल आउटकम नहीं हुआ। फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 0, बिकॉज कोई भी नंबर 8 से बड़ा नहीं होता। टोटल आउटकम 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम है टोटल, लेकिन फेवरेबल यहाँ सर पर 8 0 से है, बड़ा तो नहीं। 0, 0/6। आंसर क्या हुआ? 0/6। 0/6 का मतलब क्या होता है? 0। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, ठीक है? ओके सर। यस सर। सर यस सर। सर रेड बॉल इज यूज्ड एट नाइट एंड व्हाइट बॉल इज यूज्ड एट डे। जरा अपना कैमरा खोलना, एक मिनट, पापा मम्मी कोई घर पे हैं? दक्ष, अच्छा एक बात बताओ दक्ष, सर व्हाट ही सेड। दक्ष बेटा एक बात बताओ, ये बताओ बेटा, कल मैच में कौन जीता? कल जो आरसीबी को सर सीएसके का मैच हुआ KKR। था, केकेआर तो मैच ही नहीं हुआ था, सीएसके और आरसीबी। नहीं, सर परसों हुआ था KKR। CSK। दक्ष बताएगा, बाकी सबसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, दक्ष की जी के चेक कर रहा हूँ कितनी आती है इसको। का मैच। दक्ष, सर दक्ष, दक्ष को क्रिकेट के बारे में सब कुछ पता है। दक्ष बेटा, सीएसके और आरसीबी में कौन जीता जरा बताओ, चेक करूंगा जीके तुम्हारी। अगर अच्छा लगता है तो ये भी पता होना चाहिए, क्रिकेट अगर सर अच्छा पता लगता है तो तो। होगा सर, वो बता नहीं रहा है। अरे उसे चांस तो दो बोलने का, सब पता है, बता देगा। सीएसके जीत गई, चैट बॉक्स में बता रहा है। बेटा माइक ऑन करके बताओ ना, चैट बॉक्स में क्यों बता रहा है? सर CSK जीती 6 विकेट से। अच्छा बेटा दक्ष ये बताओ, सीएसके कितने रन से जीती है? बाकी बच्चे कोई आंसर नहीं करेंगे। सीएसके कितने रन से जीती है बताओ जरा। अच्छा चलो ये बताओ कि आरसीबी की तरफ से किसने 50 मारी है? दक्ष बताएगा केवल, आरसीबी की तरफ से 50 किसने मारी? यहाँ पर क्रिकेट चल अरे बेटा एक एक मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, अभी आंसर दे रहा है वो, देखो बताएगा। मैं उसकी जीके चेक कर रहा हूँ, क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है। अरे विराट वाह, कोहली होगा। दोनों उसने सही आंसर दिए हैं, विराट कोहली एंड पार्टिकल। वेरी गुड, सर मुझे बहुत भी लगा अच्छी था जीके विराट है कोहली दक्ष तो की। मारा। अच्छा दक्ष ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, मम्मी पापा हैं घर पे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसका देखें जीके कितनी अच्छी तुम्हारी, सारे आंसर सही दे रहा है चैट बॉक्स में। ये तो जीके थोड़ी है। मम्मी पापा घर पे हैं बेटा? जीके का क्वेश्चन है ये भी। अच्छा घर पे सर बैट है? करंट अफेयर। घर पे बैट है बेटा? मम्मी पापा बैट से तुम्हारी पिटाई लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? ऐसी बातें करते हो तो। अच्छा चलो अच्छी बात है, नहीं कॉमेडी सॉरी अच्छी सर। करता है लड़का ने। अरे सॉरी वाली सॉरी कोई सर। बात नहीं, अरे सॉरी वाली कोई बात नहीं है, अच्छी कॉमेडी करते हो तुम, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मजाक करता हूँ सर मैं भी मैंने तुम्हारे आपको साथ। चिढ़ाया फिर आपने ऐसे बोल दिया तो वो भी कोई डर गया। मजाक करता हूँ बेटा वो भी दक्ष डर गया। तुम्हारे साथ। जब नहीं आप डरा ऐसे नहीं है, डरा नहीं पापा है, को नटखट बुलाओ। है थोड़ा सा। ये से नहीं डरा, कैमरा भी ऑन हो गया वहाँ पे। बेटा मैं मजाक कर रहा हूँ दक्ष, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? बेटा एक सेकंड जरा होल्ड करिए आप लोग, एक सेकंड, मैं अपना लिंक जरा नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दूं। ओके सर।
चलिए, okay, all of you, thank you so much. Time is not left. We will discuss. Today's Pratibha. बाय सर। We will discuss सर कल the. का आज का मैच पूछिएगा कल सर से। Bye, sir. Have a nice day.